Hello students, welcome to Dia Educate. Smart Mind, Smart Solution. So we, goal guiders, we create future. As we all know, to achieve our goals, we must study hard and well. And study well तभी हो सकती है अगर आप किसी skilled educational platform के साथ जुड़े रहें. So our educators try their level best to make you achieve your targets or your goals. You can say that we help to create your future. So I, Kajal Yadav, your chemistry mentor, will guide you in your chemistry subject and will try to make it easier and understandable. सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स दैट इज गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए. All the educators in our team are highly qualified and we always will try to interact more and more with you. And for this, हम क्या करेंगे, हम डेली 2 सेशंस रखते हैं फॉर पर एजुकेटर एंड वी फोकस ऑन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट. वी डू नॉट बिलीव इन रटाफिकेशन एंड हम कभी भी नहीं कहेंगे कि रट्टा मारो. वी ऑलवेज मेक यू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट वी डू इज हम अपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट करेंगे और फॉर ईच कंसेप्ट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस जितने भी हमसे पॉसिबल हो सकेंगे. सो वी डू क्विजेस, क्वेश्चनियर्स, डिस्कशंस, लाइव टेस्ट एंड मच मोर. स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मेट पता हो कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, सो इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक थिंग्स, देन कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने में मुश्किलें नहीं आती. एंड मोर ओवर द पेपर सीम्स टू बी क्वाइट easy. So we will conduct your test sessions according to the 2020-21 format, and our top ranker, Diya Kashyap, which is the main lead of the company, is a highly qualified teacher with the 18 plus years of the experience. दिया मैम सक्सेस सीडी की फैकल्टी में रह चुकी हैं, अनअकैडमी की फैकल्टी मेंबर हैं, टीचिंग भारत के एक्स फैकल्टी हैं, इवन आईविएस के भी एक्स फैकल्टी रह चुके हैं. शी इज ऑल्सो द कंटेंट क्रिएटर ऑफ द एग्जाम फेयर फॉर द क्लासेस 11th and 12th. Her profile is very much good. What we will now focus is that we will not just stick to the science, हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाए, हमारी यही कोशिश रहेगी. हमारी टीम में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग मी, आवर टीम हैज द मेंबर्स दैट इज मानसी मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम. एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए एंड ऊपर दिए गए लिंक को वहां फिल कीजिए एंड लिंक भरते ही आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नाम है दियाज जिम. एंड ये ग्रुप हमने अपने स्पेशली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है. दियाज जिम का मतलब है आवर जिम, दैट इज यू ऑल स्टूडेंट्स आर जिम फॉर अस, यू ऑल आर प्रीशियस टू अस एंड वी विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी वे टू अचीव योर goals. So let's start with our today's lecture. Let's start with the class 9th chapter number 3, atoms and molecules, in which we have to do the question answers of the previous theory session, in which we have covered the topics that is chemical formula, how to make chemical formulas, and the molecular mass, the molecular mass. So these were the topics of the previous theory session. Let's start with their question answers. The first question we have is chemical formula of ferric oxide. First of all, what is the sign for ferric? We must know it, right? Ferric होता है Fe3+. Fe3+ का नाम क्या है? Ferric. Ferric और ferrous में कंफ्यूज नहीं होना है. Ferrous होता है Fe2+. Ferric is 3+. And oxide has the symbol of O2 negative. This is oxide ion. So let's start with its chemical formula formation, in which we have first of all Fe and this is O. Fe has the charge of 3, oxygen has the charge of 2. Cross multiplying क्या होगा? 3 जो होगा ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा और Fe के सबस्क्रिप्ट में 2 आ जाएगा. तो क्या बना? Fe2O3. So the formula for the ferric oxide is the option B, Fe2O3. Next question we have is how many elements are present in one formula unit of AlOH thrice? AlOH thrice के कितने elements present होंगे इसकी one formula unit में? So let's start.
अब AlOH थ्राइस की वन फॉर्मूला यूनिट का मतलब वन टाइम है हमारा AlOH थ्राइस। अगर ये होल सिर्फ एक बार ही है तो इसके अंदर क्या है, एक एल्यूमिनियम है और कितने आयंस है हाइड्रोक्साइड की, 3। इट हैज one aluminium and 3 hydroxide. So the total number of elements present in this is 1 plus 3, that is 4. So the answer here is 4. Next question we have is, which of the following represents a correct chemical formula? This is CaCl, this is BiPO4, this is NaSO4, and this is NaS we have, right? So let's see which of these is the correct representation of a chemical formula. यहाँ पर है कैल्शियम का क्लोराइड। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसकी वैलेंसी जो निकल के आती है वो होती है 2, क्लोरीन की होती है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये फॉर्मूला क्या बनेगा, CaCl2, ना कि ये, तो ये तो गलत है। BiPO4, अब जो Bi है उसकी जो वैलेंसी होती है वो 2+ है, फॉस्फेट की होती है 2 नेगेटिव, राइट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, BiPO4 बनेगा। BiPO4 करेक्ट है तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, बट फिर भी हम देख लेंगे, क्या पता मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन ना हो इस क्वेश्चन का। सो द थर्ड पार्ट इज NaSO4। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, सल्फेट की होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो सोडियम के पास 2 आना चाहिए, दिस वुड बी Na2SO4 नॉट NaSO4। Here we have is NaS, sodium sulfide. Sodium has the valency of +1 and sulfide has the -2. After cross multiplying it, we get Na2S, not NaS. So option D is also incorrect. We have the option B correct here. The next question we have is, what is the chemical formula for aluminium hydroxide? Aluminium hydroxide का chemical formula पता करने के लिए first of all aluminium का symbol होता है Al और hydroxide का symbol होता है OH, और फिर इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3+ एंड हाइड्रोक्साइड की होती है 1-। सो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सबस्क्रिप्ट में इनके क्या जाएगा, Al के सबस्क्रिप्ट आएगा 1 एंड OH का सबस्क्रिप्ट आएगा 3। अब ये जो चीज है इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि इट मींस कि एक बार एल्यूमिनियम है, एक बार ऑक्सीजन है और 3 बार हाइड्रोजन है। सो हाइड्रोक्साइड 3 बार है, कल्ला हाइड्रोजन 3 बार नहीं है, सो we'll put bracket in the hydroxide molecule. So the chemical formula for aluminium hydroxide is AlOH thrice. This is the chemical formula. Next question is, what is valency? Valency is the combining capacity of an element. कि एक एलिमेंट कैसे कंबाइन कर सकता है, अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लेट्स से 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उसके वैलेंस शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेट्स से वी हैव an element phosphorus having the atomic number 15, electronic configuration would be 285. It has 5 electrons in its outermost shell, so that is why it is 3 electrons less from the inert gas configuration. इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या करेगा, कंबाइन करेगा, gain 3 electrons and will acquire the -3 charge, and that is why the electronic configuration will become 288. अब इसके पास जो चार्ज आया वो क्या था, -3, वो इसकी क्या हो जाएगी, valency, right? So the valency of the phosphorus is -3. It is the combining capacity of this phosphorus element. Like taking more example, let's say oxygen or nitrogen. Nitrogen has the atomic number 7. Electronic configuration would be 2, 5. It is also 3 electrons less
it will also acquire the -3 charge on addition of the 3 electrons. The next example we have is of the sodium. Let's say sodium has the atomic number 11, electronic configuration 281. It is in excess of 1 electron. It will get rid of this 1 electron by donating it or by losing it and will acquire the +1 charge, and hence the valency of sodium would be +1. So this is the combining capacity of the sodium. So this is how valency happens. Next is the valency of aluminium in aluminium chloride is. Aluminium chloride has the chemical formula AlCl3. अब ये कैसे बना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और सबस्क्रिप्ट में क्या जाती है? इनकी वैलेंसी. तो Al की वैलेंसी यहां से निकल कर आएगी 3 एंड क्लोरीन की 1. एंड आफ्टर डूइंग द केमिकल फॉर्मूला हमें कुछ रूल्स दिए गए थे. फर्स्ट रूल था कि जो this we have to write the first element should be metal, the second element should be a non-metal. So this is the rule. For this we can say that aluminium is a metal, so that is it will acquire the positive charge, and the chlorine is a non-metal, will acquire the negative charge. So the valency of aluminium in aluminium chloride is +3. Next question is, name the chemical formula of ferrous oxide. Ferrous is Fe, oxide is O, and ferrous has the charge of 2 plus and oxide has the -2. अब इसमें क्या होगा? फेरस में और फेरिक में बहुत कंफ्यूजन होता है. फेरिक इज +3 वाला आयरन और फेरस इज +2 वाला आयरन. सो कंफ्यूज नहीं होना है. फेरस इज +2, फेरिक इज +3. So on cross multiplying, what we get is we get the chemical formula of ferrous oxide, that is FeO. अगर सबस्क्रिप्ट सेम होगा तो हम नहीं लिखते हैं Fe2O2 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? FeO. Next question is, true or false, the chemical formula of water is H2O2. This is a false statement. The chemical formula of water is H2O. H2O2 होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. It is हाइड्रोजन पर ऑक्साइड and water होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड. So हाइड्रोजन ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हाइड्रोजन का सिंबल इज H, ऑक्साइड इज O, हाइड्रोजन पे चार्ज 1, ऑक्सीजन पे -2, तो क्या बनेगा? इट बिकम्स H2O ना कि H2O2. So that is why we can say this is a false statement. Next is true or false, the formula for sulfur dioxide is SO2. Sulfur is S, oxide is O. We are given di, it means it is twice. So this is the correct statement, that is formula for the sulfur dioxide is SO2. So it is true. Next question is, formula for the sulfur trioxide would be same. क्या होगा? sulfur एक S, oxide is O, tri means 3, this is SO3. So the formula for the sulfur trioxide is SO3. Next one we have is, what is meant by the term chemical formula? Chemical formula क्या है? Chemical formula एक representation है symbols की. It is a symbolic representation of elements in a compound, right? So chemical formula क्या है? Chemical formula एक symbolic representation of a compound, right? And its composition, the actual number of atoms in one molecule of a pure substance may be an atom or a compound. जैसे कि अगर हम बात करें वाटर की एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है H2O. तो वाटर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? उसका केमिकल फॉर्मूला है ये. तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O.
जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, तो ये उसका केमिकल फॉर्मूला है, राइट। अगर ऑक्सीजन की बात करें O2 इज द केमिकल फॉर्मूला, राइट। और क्या करें, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और क्या हो सकता है, सोडियम क्लोराइड है। तो ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबल से हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, एक कंपाउंड को। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द following. First of all, we have is copper nitrate. Copper having the symbol of Cu, nitrate has the symbol of NO3. Copper has the charge of +2 and nitrate has the charge of -1. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या चला जाएगा, कॉपर के सबस्क्रिप्ट में 1 एंड नाइट्रेट के सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, 2. सो इट इज CuNO3 twice is the chemical formula for the copper nitrate compound. Next is aluminium chloride. Aluminium का symbol है Al, क्लोरीन का symbol, क्लोराइड का that is Cl. aluminium का चार्ज +3, क्लोराइड का -1, क्रॉस मल्टीप्लाई, सबस्क्रिप्ट में Al की जाएगा 1 and it is Cl3. So AlCl3 is the chemical formula for aluminium chloride molecule. Next question is, give the names of the elements present in the following compounds. अब तो एक क्विक लाइन में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, हमें बताना है। क्विक लाइन का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, ये बना है कैल्शियम से प्लस ऑक्सीजन से। So elements in calcium oxide or quicklime is calcium and oxygen. Next we have is hydrogen bromide, which has the structure of HBr. अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक bromine है. So the elements in the hydrogen bromide is hydrogen and bromine. Next is write the chemical formula of the following. First of all, we have is magnesium chloride. Magnesium is Mg, chloride is Cl. Magnesium having the charge +2, chloride -1. क्या हो जाएगा, it becomes MgCl2. Next is calcium oxide, which is calcium is Ca, oxide is O. Calcium having the charge +2, oxide having the charge of -2. So subscript same है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, CaO. That is calcium oxide's chemical formula. Next is give the chemical formula for the following compounds and compute the ratio by mass of the combining elements in each one of them. Right? So let's start. Ammonia. Ammonia is NH3. NH3 को अमोनिया बोलते हैं, तो NH3 is the chemical formula for the ammonia. कंप्यूट करना है रेशियो बाय मास. अब नाइट्रोजन का मास होता है 14, हाइड्रोजन का मास 1, तो 3 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 3. सो इट इज 14:3. नेक्स्ट वी हैव इज कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा 1 टाइम, मोनो मीन्स 1. So CO. Second one we have is CO. कार्बन का मास होता है 12 grams and ऑक्सीजन का मास होता है 16. So it is 3:4 by mass. Next is hydrogen chloride, which is HCl. Hydrogen has the mass of 1 unit and chlorine is 35.5. So it is 1:35.5. Next is aluminium fluoride. Aluminium is Al, fluoride is F, and the charge on the aluminium is 3. So it is AlF3. Aluminium has the mass of 26 and fluorine, that is atomic number 9, has the mass of 18. We have 3 fluorine atoms, so it is 18 into 3, that is 54. So it will be 26:54, that is 13:27.
14:27 by mass for aluminium fluoride molecule. Next is magnesium sulfide. Magnesium is Mg, sulfide is S. Both have the valency of 2, so we will not write their subscripts. So it is MgS. अब मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24, सल्फर का मास होता है 32. सो बाय रेशियो इनका मास क्या हो जाएगा? मास रेशियो इज 3:4. कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह ये भी 3:4 एग्जिस्ट करता है बाय मास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो बाय मास ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज कैल्शियम, देन वी हैव इज द कार्बोनेट. Ca का मास होता है 40, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16. 3 ऑक्सीजन होंगी तो 48, राइट? तो इट इज 20 रेशियो. सिंपलर रेशियो में इसको हम तोड़ेंगे. 24, 10 ratio, 3:12 by mass, they exist in a compound. Magnesium chloride. Magnesium has the mass of 24 and chloride has the mass of 35.5. So it is twice. So it is 24 ratio. 24 ratio, roughly 71 comes out. So it is 24 ratio 71 by mass. Next is hydrogen sulfate, H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड भी नाम बोलते हैं इसका. हाइड्रोजन का मास 1 into 2 कर देंगे. सल्फर का मास कितना होता है 32. ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन हैज द मास ऑफ 16, 16, 4, 64. So it is 1:16:32 by mass. Next is fill in the blanks. In a chemical reaction, the sum of the masses of the reactants and the products remain unchanged. This is called, अगर sum of mass reactant का और product का same रहता है तो ये किसके law के अंडर आते हैं? Law of conservation of mass के. Law of conservation of mass. या फिर हम क्या कहेंगे? This is called directly conservation of mass. कि mass can neither be created nor be destroyed. Next question is the group of atoms जिनके पास fixed charge होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको हम polyatomic ions कहते हैं. Polyatomic ions. जैसे कि फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव ही होता है. ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं. इनके पास टोटल के पास अपना फॉस्फोरस का कोई चार्ज नहीं, ऑक्सीजन का कोई चार्ज नहीं, पूरे ग्रुप ऑफ एटम्स का एक ही चार्ज है, दैट इज 3 नेगेटिव. तो ऐसे आयंस को हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस. नेक्स्ट इज फॉर्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3. इसको फाइंड आउट जरूर कीजिएगा. कैसे आया? सोडियम ये होता है, कार्बोनेट ऐसे होता है, सोडियम +1 कार्बोनेट -2, तो यहां से आया Na2CO3. नेक्स्ट इज अमोनियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेट इज NH4SO4. अमोनियम होता है NH4, अमोनियम एंड सल्फेट होता है SO4. अमोनियम पे चार्ज कितना होता है? +1. सल्फेट पे कितना होता है? 2. So it is NH4 twice SO4. This is ammonium sulfate. Next is write the atomicity of the following. Atomicity क्या होता है? Number of atoms present in a molecule. अब सल्फर एग्जिस्ट करता है S8, तो atomicity क्या हो जाएगी सल्फर की? सल्फर की atomicity would be 8. एंड फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 में, तो फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 4. So the atomicity of sulfur is 8 and that of the phosphorus is 4. Next is write the meaning of these formulas. अब 2 times oxygen का मतलब है कि 2 ऑक्सीजन एटम्स मिले हुए हैं. 2 ऑक्सीजन एटम्स है. अब O2 का मतलब क्या है? ये कंबाइन कर चुके हैं, ये सेपरेटेड है, एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन. ये 2 नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर कहें तो ये नेसेंट फॉर्म है, राइट? फ्री फॉर्म है ऑक्सीजन की. O2 इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स, राइट? अब ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है, एग्जिस्ट करता है. O3 भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है जिसमें जो भी कंबाइंड फॉर्म है 3 ऑक्सीजन एटम्स की, राइट? अब फर्क क्या है? ये भी कंबाइंड फॉर्म, ये भी कंबाइंड फॉर्म. ये है डायटोमिक
इसमें 2 एटम्स हैं और ये है ट्राई एटॉमिक। और पहले वाला कैसा है, उसमें एक ही एटम है, 2 बार वैसे लिखा हुआ है, लेकिन वो रहेगा क्या, मोनो एटॉमिक, राइट, मोनो एटॉमिक। नेक्स्ट इज गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट्स आयन। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देनी है और उसकी आयन की। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, दैट इज 2,8,3 is the electronic configuration for aluminium। और उसकी आयन मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेस है, ये लूज करने के बाद एल्यूमिनियम क्या करता है, +3 चार्ज एक्वायर करता है, तो ये उसकी आयन बन गई। इस पे चार्ज क्या होगा, +3, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन would be 2,8। Write the chemical symbols of the two elements which are formed from the first letter of the element's name। ऐसे केमिकल सिंबल बताने हैं दो एलिमेंट्स के जो कि सिर्फ पहले लेटर से ही बन जाते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर किया, एक था फॉस्फोरस, अपने पहले लेटर से ही बन गया। फॉस्फोरस का नाम था PHO, PHOS, PHOROUS। पूरे नाम से सिर्फ पहला लेटर उठाया और बन गया। वन वी हैव इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को भी N से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा NITROGEN। पूरा नाम ये है और N कल्ला उसका क्या आ गया, सिंबल है, राइट। नेक्स्ट इज गिव द केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट क्या गिवन है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है, लेट्स सी, इट इज केमिकल नेम फॉर वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट having the chemical formula Na2CO3.10H2O। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और इसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं। ब्लू विट्रॉल होता है, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। ब्लू विट्रॉल इज सेकंड क्या है, ब्लू विट्रॉल दैट इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, ये इसका क्या हो गया, कॉपर सल्फेट .5H2O। इसके पास 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे हुए होंगे। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल नेम क्या है, कॉपर सल्फेट। थर्ड इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाय कार्बोनेट। सोडियम बाय कार्बोनेट, जिसको हम लिखते हैं NaHCO3। फोर्थ वन वी हैव इज ग्रीन विट्रियोल विच इज फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को कहते हैं क्या, ग्रीन विट्रियोल। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4। विट्रियोल है मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि ब्लू में थे ऐसे ही ग्रीन में भी होंगे। फिर आता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल क्या होता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। Sulfuric acid is called as oil of vitriol, that is H2SO4। Next is soda ash। soda ash, अब क्या था, सोडियम कार्बोनेट था, उसमें वाटर था। अगर सोडा ऐश होगा तो उसमें वाटर नहीं होगा, वो कल्ला क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट ही होगा, दैट इज Na2CO3 ही होगा, राइट। नेक्स्ट इज लाइम वाटर, सॉरी मार्बल चिप्स। फर्स्ट मार्बल चिप्स का होता है, मार्बल चिप्स आर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, that is CaCO3। नेक्स्ट वन इज लाइम वाटर। लाइम वाटर बोलते हैं किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, that is CaOH। So with this, we have come to an end of this video. So I hope you like it. If you like it, hit the like button and share the video with your friends. And if you haven't subscribed our channel till yet, तो subscribe जरूर कीजिएगा अगर आपको video पसंद आए. And don't forget to hit the bell icon for further notification. So me, Kajal Yadav, signing off. We will meet in the next video with the new session. So till then, take care. Bye-bye. So you can follow us on Insta, Twitter, YouTube, Facebook.